دل میں بغض ہوتا ہے، مشرکوں کے آنکھوں میں بد نظری ہوتی ہے، مشرکوں کے ہاتھ چوری کیا کرتا ہے، مشرکوں کا پیر زنا کی طرف جایا کرتا ہے، مشرک حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ آسمان کا سامیانہ بچھایا، زمین کا ستون بنایا، تو اب تیرے اوپر ضروری ہے کہ تو مشرک نہ بننا، مشرک کی طرح زندگی مت گزارنا، کہ مشرک کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں حسد، بغض، کینہ رکھتا ہے، اپنی آنکھوں میں نگاہ بد رکھا کرتا ہے، اپنی سوچ گندی رکھا کرتا ہے۔ لہٰذا مشرک مت بننا، بلکہ مومن بن کر رب کی بارگاہ میں اپنی وجود کی قربانی پیش کر دینا، یہی مومن کی شان ہے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اے مولا تیرے علاوہ عبادت کے لائق ہی کوئی نہیں ہے، تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہی نہیں چاہیے۔ وہ امرت وانا اول المسلمین، مولا ہمیں حکم دے کہ ہم مسلمانوں میں سے سب سے پہلے نمبر کے مسلمان ہو جائے۔ اب پہلے نمبر کے مسلمان کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابہ تھے جن کا مقام صحابہ میں بہت بڑا مرتبہ تھا۔ جب وہ حج کرنے گئے، کیونکہ قربانی کا حج سے بڑا تعلق ہے، جب وہ حج کرنے کے لیے گئے تو ایک صحابی ان سے ملتے ہیں، ملنے کے بعد کہتے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ گھوڑے پہ سوار ہو کر۔ اس زمانے میں گاڑیوں کا، ہوائی جہاز، فلائٹ، ٹرین، اس طرح کی کوئی سہولتیں نہیں تھی، لوگ گھوڑوں میں سفر کر کر اللہ کی رضا کے لیے حج کرنے جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے حج کرنے جاتا ہوں۔ وہ صحابی کہتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ان سے پوچھا گیا کہ لوگ جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں سامان سفر باندھ کر لے جاتے ہیں، اپنے راستے کی ضروریات لے جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے ہیں، آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہے، آپ کیا کھائیں گے؟ اس نے کہا کہ حج نام ہے دعوت کا، یعنی رب کی طرف سے دعوت ہوا ہے، اور دعوت کا کام ہوتا ہے جو جس کو دعوت دیتا ہے انتظام کرنا، میزبان کا کام ہوتا ہے، مہمان کا کام نہیں ہوتا۔ اور میں رب کا مہمان ہوں، میں حج کرنے جا رہا ہوں، کام میرا رب میرا میزبان ہے، اب رب ہی انتظام فرمائے گا، کیا کہے گا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں، ساز و سفر شریع طور پر لے جانے کی اجازت ہے، مگر آج کے حاجی جو حج کرنے جاتے ہیں نا، وہ وہاں جا کر پہلے فوٹو شوٹ کرتے ہیں، ویڈیو شوٹ کرتے ہیں۔ رب کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں کے آج کے حاجی جاتے ہیں، کیسا سیٹ تھا ہوٹل کا، کیسا کھانا تھا، کیسا پینا تھا، کیسا بیٹھنا تھا، وہ یہ دیکھتے ہیں۔ مگر جب عاشق حج کرتے ہیں انہیں کو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ چلے گئے حج کرنے کے لیے، حضرت عبداللہ ابن مبارک بھی حج کرنے پہنچتے ہیں، اچانک وہ ایک پہاڑ کے پاس کھڑا ہے، مینا کے پاس کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں مولا میں کیا اتنا گنہگار ہوں، اتنا خطا کار ہوں کہ پروردگار میں تجھے نہ دیکھ سکا۔ یہ کون سا قانون ہے، یہ کیسا دستور ہے کہ جب میزبان مہمان کو بلاتا ہے تو ملاقاتیں ہوتی ہے، آپس میں بات چیت ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، سلام و کلام ہوتا ہے، لیکن تو نے مجھے بلایا، میں تیرا میزبان ہوں، نہ تیرا پتہ ہے نہ تیرا کوئی گھر ہے، تیرے گھر کے چاروں طرف گھوم کر آیا، لیکن میرا میزبان مجھے کہیں نہیں دکھا۔ مینا کے میدان پر گیا کہیں نہیں دکھا، کوہ طور پر گیا وہاں بھی نہیں دکھا، مدینہ الرسول میں گیا وہاں بھی نہ دکھا، مکہ کی زمین، مدینہ کی زمین چھان ڈالا، مجھے کہیں نہیں دکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے مجھے بلایا نہیں ہے، میں بلکہ ایسے ہی تیرے گھر میں آ گیا ہوں۔ رب کا دریا جوش میں آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے سامنے میں رو رہا تھا، اتنے میں ایک بجلی چمکی، چمکنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں بے ہوش ہو گیا، اور زمین پر جب گرا ہوش آیا تو میں نے کہا میں نے اپنے مہمان کو دیکھ لیا ہے، اپنے میزبان کو دیکھ لیا ہے، میں نے رب قدیر کو دیکھ لیا ہے۔ تب وہ کہتے ہیں کہ میں حج کرنے نہ آیا تھا بلکہ اپنے میزبان خدا کو دیکھنے آیا تھا۔ بتائے حج اسی کی ہوتی ہے جو جا کر اللہ کی قدرت سمیٹ کر لائے، جو جا کر رسول کریم کی محبت سمیٹ کر لائے۔ ایک فقیر سے ملتے ہیں اس کے بعد عبداللہ ابن مبارک، وہ فقیر کہتے ہیں کہ تو مدینہ شریف آیا ہوا ہے؟ کہتا ہاں مدینہ آیا ہوں۔ کہتے ہیں اگر مدینہ آیا ہے تو فقیروں کو کھلایا کرو۔ اس نے کہا حضور میں فقیروں کو کیسے کھلاؤں گا، میں کیسے پہچانوں گا کہ یہ فقیر ہے؟ وہ کہتے ہیں پہچانے گا کیسے؟ تو لوگ دو روٹی ان کے ہاتھ میں تھماتے ہیں، کچھ چٹنی تھماتے ہیں، کچھ سبزیاں تھمانے کے بعد کہتے ہیں جاؤ مدینہ کی گلیوں میں گھومو، جو تمہیں فقیر ملے گا اسے کھلا دینا۔
जैसे ये पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद कहते हैं या अल्लाह मैं कैसे पहचानूंगा कि कौन मिस्कीन है, कौन फकीर है, कौन गरीब है। उतने में एक सहाबी रसूल हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद कहते हैं क्या हुआ? कहते मैं बड़ा परेशान हूँ, वहाँ रब का दीदार करके मदीना आया तो यहाँ इम्तिहान दर इम्तिहान हो गया। एक फकीर ने कहा कि तुम फकीरों को खिलाया करो, मिस्कीनों को खिलाया करो। बताइए इस मदीने की वादी में मैं मिस्कीन कहाँ से पहचानूंगा, कहाँ से जानूंगा कि ये हकदार है इस खाने का? वो कहते हैं कि मदीने के इर्द गिर्द घूमने वाले कुत्ते ये फकीर है, ये हकदार है, लिहाजा इनको रोटियां खिला दिया करो। जब कुत्तों को उसने रोटियां खिलाई, मदीने पाक से आवाज आई, ऐ अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, जो मेरे घर के कुत्तों की ताज़ीम करता है अल्लाह तबारक व तआला उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। लेकिन आज हमारा हाल क्या है कि कोई खरीदी के लिए जाता है हज करने के लिए, कोई नुमाइश के लिए हज करने जाता है। आज खुद देखे, समाज का जायजा ले और एक चीज जाने, वीडियो बनाना नाजायज़ हराम है, वीडियो बनाना नाजायज़ हराम है। जरूरत शरई के एतबार से सिर्फ इतनी इजाजत है कि आपको जब जरूरत पड़ जाए तो आप खींच सकते हो, मगर वहां तो एक मुकद्दस जगह पे हम जा रहे हैं, वहां जब तक मिना से लोगों को नहीं दिखाएंगे हज होगा ही नहीं। यह हाल लोगों ने बनाया है। ऐशो आराम की चीजें याद रहती है, खाने काबा की वो जो है अजीम फिजाएं, खाने काबा की बरकत फिजाएं, मदीनतुल मुनव्वरा के रौनक अफरोज नजारे याद नहीं रहता। और वजह यही है कि इंसान का हज जो अल्लाह ही जाने हज कबूल हुआ कि ना हुआ, क्योंकि आज के दौर में इंसान नुमाइशी तौर पर हज करता है। इसलिए हज करने जाओ तो काबतुल्लाह के लिए जाया करो, हज करने जाओ तो रसूल करीम के लिए जाया करो। वमा अना मिनल मुशरिकीन। फिर आगे कुर्बानी का पैगाम सुनो। कुर्बानी का पैगाम है इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाई व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्ना सलाती, मौला मेरी नमाज, इन्ना नुसुकी मेरी कुर्बानी, व हयाती मेरी जिंदगी, व ममाती मेरी मौत, सब कुछ तेरे जिम्मे है। और बंदा वही कामयाब होता है जब अपना सब कुछ रब के हवाले कर देता है, वो बंदा कामयाब हो जाता है। वही हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं कि मदीना जब पहुंचा, पहुंचने के बाद मुझे इतनी शिद्दत की भूख लगी, इतनी भूख लगी कि खाने का कुछ ना था, मेरे पास कुछ भी ना था। 2-4 खजूरें ले गया था, वो भी बांट करके खत्म कर दिया। अब भूख की शिद्दत इतनी थी और मैं इतना गैरतमंद सहाबी था कि मैं किसी से मांगा भी नहीं। किसी ने कहा कि किसी से मांग लो पेट भर जाएगा, उसने कहा मैं नहीं मांगूंगा। मांगूंगा कहाँ? क्योंकि अदा करने वाले की बारगाह में आकर मैं मांगूंगा, मुझसे ऐसा नहीं हो सकता है। ये अल्लाह के रसूल के पर्दा फरमाने के 150 साल के बाद का वाकया है। वो कहते हैं कि मेरी भूख इतनी तेज की थी कि मैं मदीने रसूल में हाजिर हुआ और हाजिर होकर सिर्फ इतना कहा, या रसूल अल्लाह, आज तक मैंने किसी से मांगा नहीं है, आज तक मैंने किसी के पास हाथ फैलाया नहीं है। आज मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, मुझे शिद्दत की भूख लगी है, बहुत प्यास है, मगर मेरी गैरतमंदी किसी को मांगने से मुझे रोक रही है, इसलिए आया हूँ आपके बारगाह में और इंतजाम आप ही फरमाएंगे। इतना कहने के बाद आंखें अश्कबार हो जाती और आप अपने जो है जहां आप ठहरे थे अपनी कयामगाह पे आए, आने के बाद आंखें लग जाती है। यहाँ से अकीदा लेकर जाओ, जो लोग कहते हैं अल्लाह के नबी देते नहीं है, नबी देने वाले नहीं है, और ये हदीस पाक अल्लाह के रसूल के पर्दा फरमाने के 150 साल बाद की ये वाकया है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं मेरी आंखें लग जाती है, लगने के बाद मेरे करीम आका ख्वाब में तशरीफ लाते, लाने के बाद 3 रोटियां अल्लाह के रसूल के हाथ पर होती है और कुछ सब्जियां होती है और कहते हैं बेटा इब्ने मुबारक तू खा। अपने हाथ से रोटियां हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को खिलाते हैं, खिलाते जाते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक खाते जाते हैं, खिलाते जाते हैं, खाते जाते, खाते खाते जब पेट भर जाती है, उधर मुअज्जिन असर का अजान देता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अजान की आवाज से आंखें खुल जाती हैं। तारीख गवाह है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं उस जात की कसम जिसके दस्ते कुदरत पर मेरी हाथ है कि जब मैं आंख बेदार हुआ, मेरी आंखें खुली तो मेरे हाथ पर एक रोटी और कुछ सालन भी बचे हुए थे। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। कौन कहता है मेरे नबी नहीं देते हैं? देते हैं, बस मांगने का सलीका चाहिए, मांगने का तरीका चाहिए, नबी पर मिटने का तरीका चाहिए। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? हम नबी से बहुत मोहब्बत करते हैं, अपनी दाढ़ियों को नहीं सजा सकते, नबी से बहुत मोहब्बत करते हैं, नबी के नाम पर अपनी हसद को नहीं कुर्बान कर सकते। तो बताए वो रसूल हमारी कैसे मदद करेंगे, वो नबी हमारी कैसे मदद करेंगे? जिस
इस नबी की शान ये है कि जब नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा चुके हैं, हजरत आयशा, एक हदीस का मफहूम है, हजरत आयशा पर लोगों ने तोहमत लगाया, हजरत आयशा को लोगों ने बदनाम करना चाहा, जनाब आयशा की इज्जत को लोगों ने उछालना चाहा। हजरत आयशा फरमाती है, जब लोगों ने मेरी इज्जत को तार तार करने लगे, मेरी इज्जत को दागदार करना चाहा, तो मैं खामोश रहा, अपने सब्र के दामन को थामा रहा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर की तरफ रुख किया और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपकी बीवी आपके पास भीख मांग रही है, अपनी इज्जत की भीख मांग रही है, अपने नफ्स की भीख मांग रही है, अपनी वक़ार की भीख मांग रही है। जिस आयशा से आपने जिंदगी भर मोहब्बत की है, वो आयशा आज अपनी इज्जत की भीख मांग रही है। उतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी आयशा की आंखें लगती, हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाते और कहते हैं, खुदा ने तेरी तहारत पर कुरान मुकद्दस में इससे पहले ही नाजिल फरमाया था, लेकिन सुनो, जो तुम पर जो है आज तोहमत लगा रहा है, उसे पकड़कर मदीनतुल मुनव्वरा पर ले आना, उसके बाद वहां जाकर उसकी गवाही दे दिया जाएगा। हजरत आयशा उस शख्स को लेकर मदीना में ले आती है। लाने के बाद मदीनतुल मुनव्वरा से हमारे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक वापस बाहर आता है। कब्र अनवर से बाहर आने के बाद हाथों में जो है एक लेटर लिखा होता, एक तहरीर लिखी होती, कहती है, हादिहिल आयशा जौजी अफीफतुन, ये आयशा मेरी बीवी है जो पाक दामन है, लिहाजा तुम्हारा नबी मेरी बीवी पर तोहमत लगाना ये बिल्कुल सरासर गलत है। आप खुद देखें, आशिकों की निगाह से जब आशिक अपने इश्क के साथ मदीना पहुंचते हैं तो अल्लाह के रसूल को देख कर आते हैं, अपने अकीदे को मजबूत करके आते हैं कि नबी जिंदा है, अपने अकीदे को मजबूत करके आते हैं कि नबी देने वाला है, अपने अकीदे को मजबूत करके आते हैं कि खुदा को भी देखा जा सकता है। मगर आज हमारा और आपका मामूल क्या है? लोग हज करने जाते हैं, जाने के बाद वहां की कहानियां सुनाने लगते हैं, कहते हैं वहां तो मैंने ऐसा देखा, वहां तो कोई भी किसी के पीछे नमाज पढ़ लेते हैं, वहां तो ये सब हेर फेर देखा ही नहीं, इस तरह की बातें करते हैं। और याद रखना, पहले ही आगाह हो जाओ, एक फितना उठने वाला है। आप नेट का जमाना, उस फितने को देखो जो अरब की धरती से उठा है, पाकिस्तान से चला है, अमेरिका जापान में जाकर पहुंची है, अब वो कश्मीर में भी आ चुका है, सुनने में आया, जो श्रीनगर में भी उसकी जो है तहरीक हो चुकी है। अब जो है दूर नहीं है लोगों के ईमान को लूटना, ईमान बहुत कीमती चीज है, उसको लूटने से बचाओ। जिस फितने का नाम फितना गोहर अली शाह है, आप नेट देखें, सर्च करें, यूट्यूब में आपको समझ में आएगा। वो कहते हैं खुदा की इबादत करना वक्त का जाया करना है। वो कहते हैं रसूल करीम की रिसालत खत्म हो गई है, अब हमारे पीर गोहर अली शाह रसूल हैं। वो कहते हैं हमने ईसा से मिलकर आया है, वो कहते हैं ये हमारा इमाम मेहदी है। इस तरह की प्रोपेगेंडा किया जाता है और हमारा मुस्लिम समाज उसके जो है जाल में फंसकर एक तहरीक चलती है, जवान उसको जाकर पकड़ लेते और कहते हैं दिल के अंदर भी एक दुनिया है जिसको तसव्वुफ कहा जाता है, जो मुसलमान होता है उसकी पेशानी पर अल्लाह लिखा होता है। इस तरह लोगों को गुमराह किया जाता है। क्यों किया जाता? क्या आप उसको भी मान लेंगे? वो भी तो अरब से निकला हुआ एक फिरका है। क्या आप उसको भी मान लेंगे? वो भी तो मदीने की जमीन से आया हुआ है। क्या आप उसको भी मान लेंगे? पाकिस्तान की जमीन मुसलमानों की जमीन है, वहां से आया हुआ फिरका है। याद रखना, अपना ईमान इतना मजबूत कर लो जिस ईमान के बारे में मुरादाबाद की जमीन पर सैयद किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाह तआला अलैह का नाम सुना होगा, जिसने मरते समय कहा था मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, तू मुझे सूली देना चाहता है दे दो, मगर मेरी एक ख्वाहिश है कि रसूल की शान में नात लिख दूं। उसको जब छोड़ा गया तो उसने कहा था ना कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, फकत दीने मोहम्मद का दीने हसन बाकी रह जाएगा। हजरत किफायतुल्लाह काफी को जब जेल में बंद कर दिया गया, आपको जेल में बंद कर देने के बाद 8 दिन तक गरम प्रेस स्त्री आपके जिस्म पर चलाई गई। सिर्फ इसलिए चलाया गया कि तू दीन इस्लाम से मुनहरिफ हो जा, तू अंग्रेजों के हाथ पर अपना सौदा कर ले, तू दीन का सौदा कर ले। हजरत किफायतुल्लाह काफी कहते हैं मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ मगर दीन